morning, everyone. Am I audible to all of you? चलो. Okay, so let them join. Let everyone joins. I can only see 51 students till now. So today we're going to discuss about the next phylum, that is Arthropoda. मेगा टेस्ट सिलेबस मैंने पहले ही बता दिया है, टिल एनिलिडा. आगे सब लोग, शैल वी स्टार्ट. कल जो पढ़ाया था उस पर कोई डाउट है? चलो. I can see only 74 students till now.
And today I will not be able to switch on the camera due to some reason, so please and try to understand. I'm sorry for that. Chalo. Okay, so shall we continue with arthropoda? चलो, जिसको आना है वो आएगा. Phylum Arthropoda, मैंने बताया था, the meaning of the word arthropoda is joint foot or jointed foot. Artho means joint, podas means foot. कल मैंने बताया था कि von Seibold in 1845 he proposed the term arthropoda, or he proposed the phylum for the first time. And there are 9 lakh species already discovered under this phylum, and this is the largest phylum in the animal kingdom. Okay, and these animals can survive, and we can find them in land, water, that is on fresh water, sea water, inside the body of the plants, animal, everywhere we can find this animal. Okay, now let us continue. They have jointed appendages. As from the name, it is clear that the name of these organisms are arthropoda. That means animals who are having appendages, or the podas which are having jointed pieces. Piece से बन के उनका पूरा जो पोडा से जो लोकोमोटरी ऑर्गन से वो बनता है. ठीक है. And the body is segmented externally. अगर हम बाहर से देखेंगे, जैसे अगर मान लो कि कॉकरोच को हमने अगर बनाया ऐसे, तो हमें बाहर से दिखेगा कि इनके बॉडी में ऐसे एक्सटर्नल सेगमेंटेशन में बाहर से क्लियरली दिखता है. सो यू कैन सी द segmentation externally. There are the segmentation can be visible. It is actually, you can observe it. And the body can be divided into basically 3 parts. One is your head, then thorax, and then abdomen. The body can be divided into 3 different parts, that is thorax, head, thorax, and abdomen. Now the body is covered with a thick, tough and non-chitinous cuticle. Body जो होगा, body के ऊपर क्या होगा? Body is actually covered with a layer which is thick, tough and non-living chitinous cuticle. मतलब जो layer होगा वो किसका layer होगा? वो chitin का layer होगा. ठीक है, chitin is a type of protein. ठीक है, so there is a layer which is forming a cover, or the outermost layer of the body is made up of a thick, rough, chitinous cuticle. Okay, which is non-living. That means it is only made up of that substance that is chitin. There is no living cells. Okay, so that layer is made up of chitin, which is a substance, and in this layer there is no living cell, and which forms the exoskeleton. Now this structure, this chitinous exoskeleton, actually forms the layer, and which is working as a exoskeleton. अगर आप देखोगे कॉकरोचेस का, या कॉकरोचेस या दूसरे सारे जो इंसेक्ट्स है, उसमें आप देखना जो उनका जो आउटर मोस्ट बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो टफ होता है. आपने कभी किसी कॉकरोच को मतलब क्रश किया है अंडर योर फीट, तो देखना एक क्रैकिंग साउंड आता है. किया है? ओके, सब पापी है, खूनी है सब तुम लोग. यू ऑल आर मर्डरर्स. हाँ, कितने कॉकरोचेस की जान ली है अब तक? इस तरह के निर्मम हत्या हत्या किया है तुम लोगों ने, पैर के नीचे कुचल दिया. हाँ, हथियारे हो तुम लोग सब, निर्दयी, क्रूएल. ठीक है, तो जो क्रैकिंग साउंड आता है ना, ठीक है, वो जो क्रैकिंग साउंड किस लिए आता है? बिकॉज ऑफ दैट exoskeleton. The exoskeleton is actually very tough, and it is made up of chitin, which is a tough structure. एकदम टफ होता है. जैसे वो होता है ना आपका जो आपके जैसे क्रंच, जैसे पापड़, या आप जैसे कह सकते हो जैसे चिप्स होते हैं ना, तो वैसा वैसा ही होता है ये. मतलब काइटिन का लेयर अगर समझोगे ना, तो बिल्कुल उस तरह का हार्ड स्ट्रक्चर होता है. इसीलिए क्या होता है कि हम ज़्यादा प्रेशर देंगे तो वो क्रैक हो जाता है, टूट जाता है. ठीक है, चलो.
Now, this is one of the reason because they have a very hard exoskeleton. This hard exoskeleton is actually help these organisms, these insects, to survive in any of the environment. That is also one of the reason that during the course of evolution, these cockroaches they survived most of the catastrophes. ठीक है, ये एक रीजन है, इसीलिए ये किसी भी हैबिटेट में जाके रह सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस हार्ड exoskeleton. Next, the coelom. They have the coelom, but the coelom is reduced in case of adult. Coelom is reduced. Coelom is reduced in case of adult. In case of adults. ठीक है. And it is only represented by cavities of the reproductive and excretory organs, and the body cavity is hemocoel. तो मैंने पहले ही बताया था आपको, ठीक है, जैसे एनिलिडा में हमने देखा था. तो यहाँ पे जो सीलोम होता है वो रिड्यूस हो जाता है और सिर्फ हमें कहाँ पे ये स्पेशली दिखेगा, वी कैन सी द सीलोम नियर टू और सराउंडिंग दी रिप्रोडक्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम. ठीक है, तो वो बहुत घट जाता है. नाउ दे हैव डाइजेस्टिव ट्रैक्ट which is complete. So they have digestive system. They have complete. They have complete digestive system. They have complete digestive system. Okay. Now the alimentary canal, it consists of stomatium, that is called foregut, then mesenteron, that is the midgut, and प्रोटोक्टियम दैट इज हाइंड गट. तो इनका जो पूरा जो एलिमेंट्री कनाल है इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. वी कैन कॉल इट एज फोर गट, देन मिड गट एंड हाइंड गट. So alimentary canal, it is having 3 part, or the digestive tract. The alimentary canal consists of 3 parts: foregut, midgut and hindgut. Foregut बोले तो क्या है? स्टोमोडियम. अच्छा, मेसेंट्रॉन इसको हम बोलते हैं, मिडगट को मेसेंट्रॉन बोलते हैं, देन proctodium, that is hindgut. So the alimentary canal can be divided into 3 different parts. कॉकरोच जब हम पढ़ेंगे तो और डिटेल में आपको दिखाएं, अब मैं पढ़ाऊंगा तब देखना. Cavities of the reproductive and excretory organs. Yeah, that is cavities, मतलब वही कह रहा है कि जो सीलोम है वो रिड्यूस होके छोटा छोटा स्पेस बन जाता है, कैविटीज बन जाता है. प्रॉपर जो बॉडी स्पेस है, बॉडी कैविटी है, वो बहुत कम हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है, यही कह रहा है. ठीक है, या प्रोक्टो, यस, हाइंड गार्ड का मतलब ही होता है, जो सॉरी प्रोक्टोडियम का मतलब ही होता है हाइंड गार्ड. ठीक है. नेक्स्ट है द ब्लड वास्कुलर सिस्टम इज ओपन टाइप इन केस ऑफ दिस आर्थ्रोपोडा. अब आर्थ्रोपोडा के केस में जो ब्लड वास्कुलर सिस्टम होता है वो कैसा होता है? द ब्लड vascular system is open type. That means they have sinuses and all the blood is emptied in the sinuses and all the important tissues and organs are dipped inside the sinus, and from there the deoxygenated is and from there the deoxygenated blood is actually taken away by another set of blood vessels. ठीक है, चलो. Now the respiratory organ, in case of the arthropoda, we have the different types of respiratory organ because the animal is actually this arthropoda. We can see that they are available in different habitats. We can find them in aquatic, we can find them in terrestrial habitat. So the respiratory organs will also vary from organism to from one animal to another animal, है ना. तो respiratory organs क्या क्या हो सकता है? Gills हो सकता है, they can have gills for the respiration. So the arthropoda which are living in the aquatic environment, so they have the gills or book gills, ठीक है, or they have the trachea or book lungs, those who are actually living on the land, or that is a terrestrial organ, terrestrial arthropodas. So
गिल्स हो सकते हैं, बुक गिल्स हो सकते हैं, ट्रैकिया हो सकता है ना। तो इसमें से कुछ भी हो सकता है। अगर कोई लैंड में रहता है तो उसके लिए उसके पास ट्रैकिया होगा, अगर वो पानी में रहता है तो उसको गिल्स हो सकता है। अभी आप बोलोगे सर बुक गिल्स क्या है, ठीक है ना। बुक गिल्स कुछ नहीं है, द गिल्स विच लुक लाइक अ बुक, जैसे हमारा किताब होता है बिल्कुल वैसा दिखता है, इसीलिए हमने उसका नाम दे दिया बुक गिल्स, और कुछ भी नहीं है। बुक लंग्स मतलब जो लंग्स है उसको अगर हम बाहर से देखेंगे तो हमें बिल्कुल बुक के जैसा दिखता है, उसको अगर हम एक्सटर्नली उसको देखेंगे, मॉर्फोलॉजिकली देखेंगे तो वैसा दिखता है, इसलिए हम उसका नाम क्या दे दिया, बुक लंग, जैसे स्पाइडर में होता है बुक लंग्स। ठीक है। नाउ फॉर एक्सक्रीशन आर्थ्रोपोडास ऑफ हैविंग व्हाट, एक्सक्रीशन के लिए आर्थ्रोपोडा के पास क्या है, फॉर द पर्पस ऑफ एक्सक्रीशन, सी दे हैव ग्रीन ग्लैंड, दे हैव ग्रीन ग्लैंड, ठीक है, दे हैव ग्रीन ग्लैंड, और दे हैव मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स। अब देखो अलग अलग आर्थ्रोपोडा में अलग अलग तरह का एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमें मिलेगा, जैसे ग्रीन ग्लैंड मिलेगा, तो उसके बाद मल्पीजियन मल्पीजियन ट्यूब्यूल मिलेगा, ठीक है। और कुछ एनिमल होते हैं जिसको हम कहते हैं एरिकनिडा, आर्थ्रोपोडा में आएगा, हम पढ़ेंगे आगे, उसमें कॉक्सल ग्लैंड होता है विच इज वर्किंग एज अ excretory organ, ठीक है। So caudal gland, green gland, Malpighian tubule, etc. These all are again different types of excretory organ what we can see in case of arthropoda. Next है nervous system. Next है nervous system. So nervous system is like annelida, जैसे annelida में था बिल्कुल वैसे ही होता है, that is nerve ring and a solid double ventral nerve cord with ganglia. क्या होगा, nervous system, और nervous system is like same like annelida, that is the nerve rings and a solid double ventral nerve cord. क्या होता है इनके पास, they have nerve ring, they have nerve ring, they have nerve rings and solid double ventral nerve cord. Double ventral nerve cord with ganglia. ठीक है, चलो नेक्स्ट है सेंसरी ऑर्गन, जैसे हमने एनिलिडा में देखा था गस्टाटो रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर, स्टैटोसिस्ट, है ना। तो वैसे हमें इसमें क्या क्या मिलेगा, रिसेप्ट मतलब जो सेंस ऑर्गन जो हमें दिखेगा वो कैसा रहेगा। सी दे हैव सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटीना, then they have eyes, ठीक है। सो दे आर मेन सेंसरी ऑर्गन्स, दे हैव एंटीना एंड eyes, ठीक है। And in many arthropoda, what we can see, the compound eyes are present in which the mosaic vision is developed, and some forms also have स्टैटोसिस्ट। कुछ आर्थ्रोपोडा में हमें स्टैटोसिस्ट भी दिखता है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर आर्थ्रोपोडा में हमें स्टैटोसिस्ट दिखेगा, देयर आर सम आर्थ्रोपोडा वी कैन फाइंड स्टैटोसिस्ट एज वेल, ठीक है। नाउ आर्थ्रोपोडा में एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है जो हमें मतलब वो विच इज एक्चुअली वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, दैट एब्सेंस, कंप्लीट absence of cilia. They do not have any cilia in their body. So complete absence of cilia is also one of the characteristic feature of arthropoda. ठीक है। Now next their muscles, what the muscles they have there, that is striped. Stripe का मतलब क्या है, बैंड फॉर्मेशन। स्ट्राइप का मतलब होता है बैंड फॉर्मेशन, मतलब ऐसे बैंड फॉर्मेशन में रहता है मसल्स, ठीक है। लेयर्स, ऐसे बैंड फॉर्मेशन होता है, इसको हम बोलते हैं स्ट्राइप मसल। अनस्ट्राइप मतलब विदाउट एनी लेयर, विदाउट एनी बैंड, ठीक है। स्ट्राइप मतलब बैंड फॉर्मेशन।
Now, if we talk about the reproduction, fertilization, so fertilization in case of this arthropoda, it is usually internal. साक्षी पूछ रही है इसका क्या फंक्शन है। देखो, बैंड फॉर्मेशन मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में, ये बैंड फॉर्मेशन होगा तो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा इजीली होता है और ज़्यादा इफेक्टिवली होता है। अब ये बैंड फॉर्मेशन किस तरह से काम आता है ये आपको एनिमल टिश्यू में समझ में आएगा, यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे अब इतना ही समझ लो, बस इतना जान लो कि यहाँ पे बैंड फॉर्मेशन होता है। अब ये क्या है बैंड फॉर्मेशन, आपको नेक्स्ट चैप्टर में समझ आएगा, दैट इज योर एनिमल टिश्यू, वेयर वी विल डिस्कस द मसल्स इन डिटेल। स्केलेटल मसल जब हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलो, fertilization in case of this animal, that is in case of arthropoda, is internal. कैसा होता है? Internal. Fertilization is internal, and they are mostly what? They are oviparous. They are mostly oviparous. Development कैसा होता है? The development can be done in two ways: direct और indirect. Direct भी हो सकता है, indirect भी हो सकता है, ठीक है। And in indirect development there is metamorphosis. Indirect development में क्या दिखता है? We can see metamorphosis. Morphosis. Indirect development, what we can see, metamorphosis. ठीक है, चलो। Endocrine glands are present which secrete hormones. ठीक है, they have endocrine glands which actually help them to secrete different types of hormone. And some arthropoda, particularly the insect group, insect जो होता है ना, ये क्लास है इंसेक्टा। तो इंसेक्ट जो होता है, इंसेक्ट जो होता है, इन ये क्या करते हैं ना, दे एक्चुअली हैव और दे यूज द फेरोमोन्स फॉर देयर कम्युनिकेशन, दे एक्सक्रीट फेरोमोन्स, ठीक है, और दे यूज दिस फेरोमोन्स फॉर कम्युनिकेशन। देखा आप लोग, अभी फेरोमोन्स क्या है, ठीक है, ये लार्वल स्टेज इज प्रेजेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा तो लार्वल स्टेज भी होगा ना, मेटामॉर्फोसिस हो रहा है तो डेफिनेटली लार्वल स्टेज होगा। अब देखो फेरोमोन्स क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जब कि कोई बहुत सारा एंट एक लाइन में चलता है, ठीक है, तो अब देखना कि वो कभी भी मिस नहीं करते। अगर आप उसको थोड़ा डिस्ट्रैक्ट भी कर दोगे थोड़ी देर के बाद वो फिर से वो लाइन बना लेते हैं। ऐसा देखा है कि नहीं आपने? सो हाउ डू दे कम्युनिकेट? एक्चुअली वो क्या करते हैं ना, वो अपने बॉडी से फेरोमोन्स रिलीज करते हैं और उनका जो एंटीना है ना, वो एंटीना जो उनके हेड पार्ट में है, उससे वो फेरोमोन्स को डिटेक्ट करते हैं कि फेरोमोन्स किस डायरेक्शन से आ रहा है, एंड बाय डिटेक्टिंग दैट से दे गेट कम्युनिकेटेड, ठीक है। So they always get communicated with the help of this antennae and the pheromones. What they release, pheromones are what? These are some type of chemical which is released by the animal in the atmosphere, which help them to get communicated. And the pheromones are always unique for each and every animal. Just give me 1 minute. Yeah, sorry for a small interruption. Now, the pheromones are what? These are the chemicals which are very unique in nature. ठीक है, जो फेरोमोन्स है बहुत ही यूनिक होता है। हर एक एनिमल का फेरोमोन्स दूसरे एनिमल से अलग होता है, एंड दिस फेरोमोन्स एक्चुअली यूटिलाइज बाय दिस एनिमल फॉर स्पेशली फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है। नाउ द सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कैन बी सीन इन केस ऑफ आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा में हमें क्या मिलता है, यहाँ पे हमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, हमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखता है, ठीक है ना। चलो, नेक्स्ट है पैरेंटल केयर कैन बी सीन इन सम आर्थ्रोपोडा, ठीक से। या सेक्सेस आर सेपरेट। अब पैरेंटल केयर क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय पैरेंटल केयर?
व्हाट डू मीन बाय पैरेंटल केयर? एनी आइडिया क्या होता है? अंडर ऑब्जर्वेशन? अंडर हुज ऑब्जर्वेशन? क्या होता है पैरेंटल केयर? अरे after the offspring born, the parents, the mother or the father, they take care of their young ones until they get completely capable enough to survive in the environment or in the natural world. इसको बोलते हैं पैरेंटल केयर। तो जो पैरेंटल केयर है, जैसे आपके माँ बाप आपको पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं ना, आपको स्कूल में भेजा, आपको पढ़ा रहे हैं, अभी भी आपको पढ़ा रहे हैं। आप लोग कुछ कमाते हो क्या? नहीं। अभी भी आप लोग पढ़ रहे हो और भी आने वाले 5 से 7 साल तक पढ़ोगे, क्या पता उससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हो। तो तब तक आपको कौन पढ़ा रहा है? हु इज सपोर्टिंग यू, हु इज टेकिंग केयर ऑफ यू? योर पेरेंट, योर प्रोटेक्ट, हु इज प्रोटेक्टिंग यू। ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड पैरेंटल केयर। सो इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग इट इज़ वेरी लॉन्ग। अब हमारे इंसान के केस में देखोगे तो बच्चे को मतलब काबिल बनाने के लिए हमें कितने दिन लगते हैं? बहुत साल लग जाते हैं। वैरी करता है वो कि बच्चा कितना लायक है। नालायक है तो भाई उसको 30-40 साल तक भी कुछ नहीं कर सकते। लायक है तो 20-25 साल में कुछ ना कुछ कर लेगा। ठीक है। सो हाउ मेनी ऑफ यू विल बी इंडिपेंडेंट, गेट इंडिपेंडेंट आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? अरे किसी भी कल्चर में काम, किसी भी कल्चर में जाओ, बच्चा जब पढ़ाई लिखाई करके खुद से कमाना नहीं चाहेगा, माँ बाप छोड़ देगा क्या? वेस्टर्न कल्चर जाओ, ईस्टर्न कल्चर जाओ। हाँ, लेकिन हमारे इंडियन कल्चर में क्या है, माँ बाप बच्चे को कभी फ्री नहीं करते, इंडिपेंडेंट करते नहीं। और बच्चा इंडिपेंडेंट होते होते बहुत समय लगता है। ऑलमोस्ट 35-40 ईयर्स हो जाता है उसको इंडिपेंडेंट होते होते। Yeah, in case of the developed nations or the Western countries, since the beginning of the child, they always try to make them independent. So they get independent very soon. ठीक है। और उनके अंदर वो जज्बा भी होता है। हमारे यहाँ पे क्या है, बच्चा लोग मतलब लड़का लोग या सबको क्या है, अरे पापा के पैसे में खाएंगे, पापा के गाड़ी में घूमेंगे। मेहनत हम क्यों मेहनत करना? यस। और हमारे इंडिया में क्या है ना, हमारे घर वाले ही हमें नहीं छोड़ते। ये भी एक प्रॉब्लम है। मेरा बेटा, मैं नहीं छोड़ूंगा। ये भी एक प्रॉब्लम है। मेरी बेटी है, वो क्या खाएगी, क्या करेगी, मैंने खिलाया उसको। अरे बड़ी हो गई है, अभी बड़ा हो गया है, जाओ उसको उसको जिंदगी जीने दो। नहीं समझते हमारे पेरेंट्स। इन फॉरेन कंट्रीज चाइल्ड गेट्स इंडिपेंडेंट वेरी सुन एज कम्पेयर टू इंडिया। या उसमें दोनों का ही गलती है। बच्चे का भी गलती है हमारे देश में, और पेरेंट्स का भी, दोनों का ही गलती है, एक का नहीं। चलो। सो पेरेंटल केयर का मतलब होता है टेक केयर ऑफ द यंग वंस अंटिल दे गेट fully mature enough to get survive in the natural environment. That is called parental care. So the parental care can be seen in case of some arthropoda, not all। ऐसा मत सोचो सब कुछ arthropoda होते हैं। अच्छा, एक और एक फिनोमिना हमें दिखेगा स्पेशली इन केस ऑफ द हनी बीज, दैट इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। अरे बाप रे, सब पैराग्राफ लिखना शुरू कर दिया है। क्या क्या लिख रहा है सर? हमारे यहाँ घर वाले कितने भी बड़े हो जाए पर बोलते हैं कि बाहर कोई कुछ कहने को दे तो मत ले, अच्छा खाने को दो दे तो मत लेना, किडनैपर होंगे। हाँ भाई, सही तो बोल रहे हैं। ये भी सही तो है, तुम कितने बड़े हो जाओ, तुमको कुछ भी खिला के तुमको बेहोश तो कर सकते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि तुम 20 साल का हो गया तो तुम बेहोश नहीं हो सकते। चलो। पार्थेनोजेनेसिस। 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 प्रभास अमित जोशी, ये कायम कायम पेट्रोल वाला, कायम पेट्रोल देखता है घर बैठ के, पता पकड़ा गया ये।
ये लॉकडाउन में सिर्फ टाइम पेट्रोल देख रहा है। या चलो खत्म कर लो इसको, पहले पार्थेनोजेनेसिस को बता देता हूँ। देखो पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, इट इज एक्चुअली द मीनिंग ऑफ दिस इज डेवलपमेंट ऑफ egg into a complete individual without the fertilization by a sperm. Whenever the organism they develop without fertilization, which is a very peculiar thing. Normally क्या होना चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि एक मेल गैमेट होगा और एक फीमेल गैमेट होगा, वो फ्यूज होंगे, जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, तो जाइगोट बनेगा और उससे जो ऑर्गेनिज्म है वो डेवलप होना चाहिए, नॉर्मल कंडीशन है। बट कुछ ऐसे भी पिक्यूलियर कंडीशंस होते हैं, जैसे कि पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है कि स्पर्म जो है, मतलब मेल गैमेट जो है फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज नहीं हुआ, फिर भी जो एग है, मतलब जो फीमेल गैमेट है, उससे पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। थोड़ा सा अजीब है। इसी को हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। क्या कहते हैं इसको हम? पार्थेनोजेनेसिस। ये हमें हनी बीज में दिखता है। यू कैन सी इट दिस फिनोमेना इन केस ऑफ हनी बी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पूरा जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है फाइलम आर्थ्रोपोडा का हमने वो डिस्कस किया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन। But before we start that, I would request you to go through all the points. I will send you the notes right now in the group. तो सेकेंड बैच वाले बच्चे जो हैं उनको नहीं मिला होगा तो उनको भी मिल जाएगा अभी। सो जस्ट गिव मी 1 minute, आई एम शेयरिंग इट। देखो चला गया है, चेक करो। गॉट इट? So now I'm giving you 5 to 10 minutes. You read all the points, especially the second batch student, because उनके पास ये notes बिल्कुल भी नहीं है। आज ही फर्स्ट टाइम मैं भेज रहा हूँ। तो सारा पॉइंट्स एक बार पढ़ो, उसके बाद मुझे बताओ अगर कोई डाउट है। आफ्टर दैट विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज। अच्छा, मैंने एनिलेडा से पहले तक नहीं भेजा है ना? ठीक है, मैं भेज देता हूँ, कोई बात नहीं। आई विल सेंड अगेन, आई विल सेंड इट अगेन, नो इशू। लेकिन अभी मैंने जहाँ तक भेजा है, जो भेजा है उसको निकालो, उसको ओपन करो और उसको पढ़ो हर एक पॉइंट। ठीक है, और सी इफ यू हैव एनी इशू। और आपका जो नोट्स है प्लीज अपडेट करो, सारा नोट्स लिख के रेडी करना है। ठीक है, चलो। सो रीड, आई एम गिविंग यू सम टाइम। रीड वेल एंड टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट, देन वी विल डिस्कस। ये देखो क्या लिख रहा है, कह रहे हैं सर अब तब तक आप लोकी का नया एपिसोड देख लो। यही करता है ये लोग, डिज्नी प्लस ये सब में यही करता है ये। लोकी का एपिसोड देखता है, उसके बाद जो भी है मूवी है वही देखता रहता है, यही करता है। क्राइम पेट्रोल देखता है कोई। अभी सवाल पूछो, कुछ नहीं आएगा। बोलेगा सर मेरे पास तो नोट नहीं है, अभी बहाना शुरू। नोट नहीं है, मैं तो उस दिन सर इंटरनेट नहीं था, मतलब चलेगा ही बहाना। उनको लगता है कि हाँ मैं तो स्कूल में पढ़ा ही नहीं, मैं तो क्लास 10 में 11 में कभी था ही नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे क्या आइडिया है इस चीज़ का। ठीक है। दोषी प्रशांत कह रहे हैं सर आप इंस्टाग्राम में हो क्या? मैं ऐसे बकवास प्लेटफॉर्म में नहीं रहता, मुझे आई डोंट लाइक इंस्टाग्राम ट्विटर, आई डोंट लाइक। जिनके पास बहुत टाइम है वो रहते हैं वो सब प्लेटफॉर्म में।
हो। जल्दी से पढ़ो, मैंने जो पढ़ने दिया है पूछूंगा मैं अभी, फटाफट रीड ऑल द पॉइंट्स। मुझे पता है नहीं किसी ने, लेकिन मैं उनकी आंखों में देख के समझ गई। दायरा सही कह रही है। मनीष ने हमसे पहले ही पूछ लिया था। Someone mic is on. आप दोनों अपने हाथों से दे दीजिए गिफ्ट दीदी को। किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर लो, नहीं तो तुम्हारा सीक्रेट बाहर आ जाएगा। आज इन पूरे जान रहते हैं। किसको अच्छा नहीं लगेगा अगर उसकी माँ की निशानी उसके पास हो। मैं भी होती तो इसको समझ में नहीं आया शायद। अरे माइक ऑन है किसी का, ऑफ करो, चेक करो अपना माइक हर कोई। हीमोसील का मतलब है गौरव, मैंने कल ही बताया था, हीमोसील मतलब होता है कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है। सीलोम का मतलब क्या होता है? कैविटी। अब कैविटी के अंदर फ्लूइड होगा, उस फ्लूइड में अगर हीमोग्लोबिन है तो उस फ्लूइड को हम बोलेंगे हीमोसिल, दैट्स ऑल। हीमोसिलोइड फ्लूइड और हीमोसिल, समझ में आया ना? अच्छा, लकुने मीन्स स्पेसेस, लकुने मीन्स स्पेस। देखो साइनस मैंने आपको जब पढ़ाया था शुरू में क्या बताया था कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या डिफरेंस है। विल फाइंड साइनसेस इन केस ऑफ दी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो मैंने बताया था दीज आर दी स्पेसेस विच आर प्रेजेंट वेयर one set of blood vessel will bring the oxygenated blood and it will emptied here, so it will filled with the, it will form a blood pool, and inside this blood pool all the important tissues and organ of that particular animal will be dipped in, and there will be exchange of gases will be done, and then another set of blood vessel will carry the deoxygenated blood from the sinus. ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताया था मैंने आपको। क्लियर है? फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट क्या है? बहुत ही सिंपल है। देखो मान लो कि अगर ये एलिमेंट्री कनाल है, अच्छा ठीक है, एक मिनट, जस्ट लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपर्ली। मान लो कि ये कॉकरोच है, ठीक है, कॉकरोच का बॉडी है, स्कीमेटिक डायग्राम बना रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे उसका माउथ पार्ट है, तो यहाँ से जो एलिमेंट्री कनाल आया, तो यहाँ पे जो ये पूरा जो एलिमेंट्री कनाल है अंटिल द एनस, ठीक है, इसको हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। फोरगर्ड मतलब आगे वाला हिस्सा, मिडगर्ड मतलब मिडल वाला हिस्सा, हाइंडगर्ड मतलब पीछे वाला हिस्सा, पोस्टीरियर वाला हिस्सा। क्लियर है? समझ में आया? आया समझ में ना? चलो अच्छा, और किसी ने कुछ पूछा है सर बुक गिल्स, डिफरेंस बिटवीन गिल्स एंड बुक गिल्स। देखो गिल्स और बुक गिल्स में कोई डिफरेंस नहीं है, वो भी गिल्स है ये भी गिल्स है। बुक, बुक का मतलब क्या है? किताब। ये बस दिखता है किताब के जैसा। भी मैं आगे पढ़ाऊंगा ना तो एग्जांपल दूंगा, फोटोग्राफ्स पे दिखाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। वो दिखता है ऐसे, लुक लाइक बुक, दैट्स व्हाई कॉल इट एज अ बुक गिल्स, और कुछ भी नहीं। ठीक है। Now someone has asked, sir, what is coxal gland? Coxal gland is a type of excretory organ, the same like Malpighian tubules and
जो हमने पढ़ा था ग्रीन ग्लैंड, मल्पीजियन ट्यूब्यूल, कॉक्सियल ग्लैंड, ये अलग अलग तरह के एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमें अलग अलग अर्थोपोडा में दिखते हैं, जिसका काम होता है एक्सक्रीशन करना. So this is what coxal gland is, excretory organ. What is coxal gland? Excretory organ. किस में दिखता है हमें ये? अरेक्निडा, स्पाइडर्स, ये सब में मिलता है. ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है. चलो, कॉक्सल ग्लैंड. अच्छा, फेरोमोन्स. चलो फेरोमोन्स को ना मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूँ, मजा आएगा आपको. देखो, चलो मैं फेरोमोन्स के बारे में मैं कुछ आपको और ज्ञान देता हूँ. चलो, तुम लोगों का काम वही है ना, तो मैं भी करता हूँ, कोई बात नहीं. देखो, फेरोमोन्स कैसे काम करता है समझो. मान लो कि ये एंट है और इसका ये एंटीना है, इसका हेड पार्ट है. ठीक है, मैं थोड़ा सा मैंने बनाया. अब दूसरा जो एंट है उसने क्या किया, उसने अपना फेरोमोन्स रिलीज कर दिया. सपोज आई एम मेंशनिंग द फेरोमोन्स ऑफ द सेम एंट विथ ब्लैक कलर. देखो मैं ब्लैक कलर से बना रहा हूँ. दिस इज द फेरोमोन्स व्हिच इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर व्हिच इज इन ब्लैक कलर. ठीक है. Okay, Gaurav, let me finish this and I'll come to your doubt, that is mosaic vision. Just wait. अच्छा, तो ये ब्लैक एंड जो फेरोमोन रिलीज किया मैंने ब्लैक से रिप्रेजेंट किया. चलो, अब मैंने आपको क्या बताया था कि देयर आर अदर एनिमल्स व्हिच आल्सो रिलीज फेरोमोन्स इन द एटमॉस्फेयर. तो मान लो दूसरा एनिमल है, उसने रिलीज किया, वो भी एटमॉस्फेयर में है, वो ग्रीन कलर का मैंने मेंशन किया. चलो, अच्छा, तीसरा कोई एनिमल है, उसने भी उसका भी फेरोमोन्स एटमॉस्फेयर में, उसको मैंने येलो कलर से रिप्रेजेंट किया. चलो, ऐसे फोर्थ एक एनिमल है जिसका भी फेरोमोन्स रिलीज किया है उसने, वो रेड कलर से मेंशन्ड है. तो अभी एंटीना जब आप देखना, अभी कभी आपने किसी भी चींटी को ऑब्जर्व किया है कि मुझे पता नहीं, तो देखना वो अपने एंटीना को डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करता है और अपने हेड को घुमाता है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, और एंटीना को मूव करता है. देखा है कभी किसी चींटी को? देखा है ध्यान से? ऐसा वो क्यों करता है पता है आपको? टू रिसीव दिस फेरोमोन्स. तो क्या होगा जब एंटीना को ये मूव करेगा एटमोस्फेयर में, ठीक है, ओ सॉरी, एक मिनट, कलर उल्टा उल्टा होगा. Just give me a minute. Let me correct it. So this is the antenna. चलो, अब ये जो एंटीना है ये क्या करेगा? इट विल ऑन दिस एंटीना ऑल अदर फेरोमोन्स विल गेट अटैच. तो अब ये ब्लैक कलर का भी अटैच हो जाएगा. अच्छा, रेड कलर का भी अटैच हो जाएगा. अच्छा, ये मतलब कलर में क्या दिखा रहा हूँ? अलग अलग एनिमल्स. दिस कलर आर रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट एनिमल फेरोमोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेरोमोन्स. ना ये लग तो जाएगा सब, लेकिन ये इट विल डिटेक्ट द विच वन, द ब्लैक वन और रेड वन, ग्रीन वन और येलो वन. किसको डिटेक्ट करेगा वो? एटमोस्फियर से जो एंट है वो किस फेरोमोन को डिटेक्ट करेगा? ऑब्वियसली ब्लैक वन, दैट इज बिलोंग टू ही स्पीसीज. ठीक है ना, सेम है ना, उसी का है, उसी के स्पीसीज का है. तो वो ब्लैक वन को डिटेक्ट करेगा. उसके बाद वो क्या करेगा? डायरेक्शन डिटेक्ट करेगा, किस डायरेक्शन से आ रहा है. ठीक है, इस तरह से वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं. ये होता है फेरोमोन्स. समझ में आया? आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको. स्नेक्स के केस में भी होता है, एक ऑर्गन उनके पास होता है, जेकॉब्स ऑर्गन. कभी देखा है स्नेक? देखना अपना टांग निकाल, सॉरी टांग बोला, टांग मतलब उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? अरे जीवा या क्या बोलते हैं हिंदी में, आई डोंट नो. So they actually take out their tongue, which is bifurcated. So they use it to actually, not fangs. Fangs are teeth. I'm not talking about fangs. Tongue. 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 तुम्हारे पास है ना टंग, जीभ, हाँ वही जीभ. तो देखना वो बाइफरकेटेड होता है और वो निकाल के ऐसे एटमॉस्फेयर में उसको वो धीरे धीरे करके उसको मूव करता है. क्या पर्पस क्या है उसका? एटमॉस्फेयर से फेरोमोन्स को एब्जॉर्ब करना, और पर्टिकुलर जो पर्टिकुलर एनिमल को वो डिटेक्ट करना चाहता है उसको डिटेक्ट करता है. वो मैं उस चैप्टर में पढ़ाऊंगा आपको. और उनके पास एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है, उसको हम बोलते हैं जेकॉब्स ऑर्गन. ठीक है, उसमें भी फेरोमोन्स आएगा. तो फेरोमोन्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंड्स यूज करते हैं, दूसरे जो एनिमल्स है वो भी यूज करते हैं. या क्वांटिटी से वो अपना क्वांटिटी ज़्यादा होगा और डायरेक्शन, मतलब जिस डायरेक्शन से आएगा ना, वो देखना उसी डायरेक्शन में सारे एंड्स उसको फॉलो करते हैं. ठीक है, दिस इज द प्रोसेस.
समझ में आया? मालपीजियन टिब्यूज इज नथिंग, इट्स अ टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन, बताया था थोड़ी देर पहले कल्पेश। चलो ठीक है, अभी गौरव ने पूछा था मोजाइक विजन, तो उसको बता देता हूँ एक बार। गौरव फिर से भेजा है कि सर भूल गया क्या, एक बार बोल देता हूँ, मैं इतनी जल्दी नहीं भूलता, मेरे पास हाथी का मेमोरी है, एलिफेंट मेमोरी, आई हैव एलिफेंट मेमोरी। ठीक है, चलो अब देखो, मोजाइक विजन समझने के लिए आपको बहुत एक छोटा सा चीज समझना पड़ेगा। क्या होता है कि आईज जो होते हैं ना, दो तरह का आय होते हैं। एक होता है सिंपल, एनिमल वर्ल्ड में क्या मिलते हैं, एक होता है सिंपल आई, एक होता है कंपाउंड आई। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम ऑर्थोपोडा का, मतलब इंसेक्ट का एग्जांपल लेते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ कॉकरोच। तो कॉकरोच इस केस में ना कंपाउंड आई होता है। ठीक है, तो होता क्या, कंपाउंड वो बनता है सिंपल आई से ही, और कॉकरोच इस केस में सिंपल है उसको हम बोलते हैं ओमैटोडियम। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे सिंपल आई जब एक साथ मिलके एक आई बनाएगा, उसको हम कहते हैं कंपाउंड आई। अब इसके पास इस ये जो कंपाउंड है ना, ये कैसा विजन हमें दिखाएगा, ये हमें दिखाएगा मोजाइक विजन। तो ये जब कंपाउंड आई, जिससे हमें कंपाउंड आई से जो विजन हमें दिखता है, उसको हम कहते हैं मोजाइक विजन, वेयर लॉट ऑफ सिंपल आई इज इन्वॉल्व टू क्रिएट द विजन और क्रिएट द इमेज सो दैट द एनिमल कैन सी द थिंग्स प्रॉपरली। ठीक है, चलो नेक्स्ट है स्टैटोसिस्ट। ठीक है, ओमैटोडियम आपको समझ में आएगा जब मैं कॉकरोच पढ़ाऊंगा, सिंपल आई और कुछ नहीं। यूनिट ऑफ कंपाउंड आई इन केस ऑफ कॉकरोचेस, दैट इज कॉल्ड ओमैटोडियम। ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस मैंने समझा दिया है, तुम्हारा इंटरनेट नहीं था उस समय कल्पेश। कल मैंने स्टैटोसिस भी समझाया था। चलो, डायोसिस का मतलब होता है हैविंग द रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल एंड फीमेल इन अ सेपरेट बॉडी और सेपरेट इंडिविजुअल। ठीक है, स्टैटोसिस इज द सेंस ऑर्गन which actually help the organism to maintain the balance and equilibrium, body balance and equilibrium। समझ में आया? क्लियर है? बोलो। इज इट क्लियर? सारा पॉइंट पढ़ लिया सबने? क्षितिजा लिख रही है कि ओनली फ्रॉम द एग अ कंप्लीट इंडिविजुअल इज फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन, बस उतना ही लिखना, 22 पम मत लिखो, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा उसको। ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन इफ द एग इज मैच इज एक्चुअली फॉर्म, it forms the complete individual organism, then that process is called parthenogenesis। example is honey bee, bees are example। ठीक है, चलो चलो, सारा डाउट क्लियर है?
सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायमॉर्फिज्म? डायमॉर्फिज्म मतलब होता है कि जब किसी भी मतलब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की बात कर रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है कि दो तरह के सेम इंडिविजुअल में या सेम स्पीसीज में हमें दो अलग अलग तरह के मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स या अलग अलग तरह के फीचर्स हमें दिखेंगे विच विल डिस्टिंग्विश द एनिमल सेक्सुअली, इसको हम कहते हैं डायमॉर्फिज्म। ठीक है, जैसे मान लो कि लड़का लड़की को देख के हम पता कर सकते हैं ना कि ये लड़का है ये लड़की है। लड़के अलग दिखते हैं, लड़कियां अलग दिखती है, तो मैं पता कर सकते नहीं कर सकते हम इंसान में। तो वैसे है दूसरे एनिमल में भी हम मेल एंड फीमेल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसी को हम कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म और डायमॉर्फिज्म। मॉर्फिज्म मतलब होता है, डायमॉर्फिज्म मतलब मॉर्फोलॉजिकली टू डिस्टिंक्ट वैरायटी, इसलिए डाई है। मोनो होता मतलब एक होता, मॉर्फिज्म मतलब मॉर्फोलॉजी। फेरोमोन्स क्या होता है मुझे भी नहीं पता। अनुष्का, वाह यू हैव अ गुड नेम। अनुष्का शर्मा नहीं, क्या है, अनुष्का पवार। अनुष्का पवार, गुड। चलो अनुष्का आप थे नहीं क्या, मैं तब से यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ना ये फेरोमोन्स। देखो एंड का ये वाला फोटो, ये फोटो बोलो इमेज बना के पढ़ाया था, नहीं सुना था आपने या आप पढ़ रही थी? फेरोमोन्स के बारे में आपको कुछ नहीं पता? शैल आई रिपीट इट अगेन? ओके, देखो pheromones are what? These are chemicals which are released. These are biochemicals which are released by the animal itself. Like in case of arthropoda, there are animals like ants and other animals are also there. Insects in the class of the insect especially, they release the pheromones to get communicated with each other. ठीक है, इसको हम कहते हैं फेरोमोन्स। तो भी होता क्या है, जैसे कि मान लो इन केस ऑफ एंड, मान लो कि एंड जो फेरोमोन रिलीज कर रहा है वो ब्लैक कलर से मैंने यहाँ पे मेंशन किया, देखो। और बाकी मैंने क्या बताया कि दूसरे एनिमल्स भी फेरोमोन रिलीज करते हैं, तो यहाँ पे रेड कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर सब क्या दिखा रहे हैं, अलग एनिमल का फेरोमोन्स यहाँ पे एटमोस्फेयर में है। तो ये एंड क्या करता है, दे यूज देयर एंटीना टू डिटेक्ट द फेरोमोन्स इन द एटमोस्फेयर एंड दे ट्राई टू डिटेक्ट द कंसंट्रेशन, the direction from where the pheromone is coming, and using that information they get communicated with each other. समझ में आया अनुष्का? These are not pigments, huh? Kalpesh, this is not pigment. These are biochemicals. Sakshi पूछ रही है सर parthenogenesis and cloning is the same method. See, cloning is a artificial method developed by human being, and parthenogenesis is a natural process. Yeah, somewhat is similar like cloning, बोल सकते हो कि अपना कॉपी बनाते हैं, बट क्लोनिंग तो अलग हो गया ना, हम करते हैं जो अलग से आर्टिफिशियल। उस सेंस पे बोलोगे तो सही है कि अपना कॉपी बनाते हैं, तो वो बोल सकते हैं क्लोनिंग है। लेकिन क्लोनिंग ये मेथड है जो हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में आगे, रिकॉम्बिनेंट आरएनए टेक्नोलॉजी में पढ़ना, क्लास 12th में है, तो आपको और क्लियर हो जाएगा तब। क्षितिजा पूछ रही सर, is it mean to communicate with each other in case of ants? Yeah, it is the mean to communicate with each other. That's what I'm saying. वो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। तुम लोग तो बहुत सारे ऐप में बहुत कुछ देखते हो ना, डिज्नी प्लस इसमें। तो देखो मैं आप तुमको सजेस्ट करता हूँ, बीबीसी के कुछ डॉक्यूमेंट्रीज है, लाइफ लाइफ का सीरीज है एक। ठीक है, बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री सीरीज है लाइफ, उस पर देखना। माइग्रेशंस है, ग्रेट माइग्रेशंस, उसमें एंड भी दिया हुआ है, तो उसमें देखना, आपको इसके बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। तो अच्छी से तो देखो जो आपके नॉलेज को एनहांस करे। ठीक है, जिसको साइंटिफिक टेम्परामेंट आपका बढ़ाए वो देखो, वो अच्छा रहता है। मुझे तो अच्छा लगता है। डिस्कवरी प्लस जो ऐप है ना, उसको सब्सक्राइब करके रखो, वो ज़्यादा अच्छा काम का है। ठीक है, डिज्नी प्लस से। ऐसा नहीं कि डिज्नी प्लस नहीं देखना है, देखो, बट
ऐसा नहीं कि सिर्फ वही क्राइम पेट्रोल और डिज्नी प्लस ही देख रहे हो, ठीक है। देयर मस्ट बी अ बैलेंस, यू नो, यू शुड हैव बैलेंस। चलो, so next we'll talk about the classification, ठीक है। so there are some classes, we'll discuss one by one in arthropoda, because हमारे सिलेबस में क्लास लेवल तक है, तो हम थोड़ा क्लास लेवल तक डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन हम क्या करेंगे, वी विल क्लासिफाई द ऑर्थोपोडा इन डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट क्लासेस। सो एक के बाद हम डिस्कस करेंगे। सो नंबर वन विल डिस्कस, दैट इज क्रस्टेशियंस, ठीक है। सबसे पहले हम किसको डिस्कस करेंगे, क्रस्टेशियंस को। किसी को भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि सीरीज में ही करना है। हम ऑनशियोफोरा के को थोड़ा कोई पहले कर सकते हैं। चिलोपोडा है, डिप्लोपोडा है, इंसेक्टा है, अरेक्नीडा है, ठीक है, मेरिस्टोमाटा है। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट groups, they have different different class. So almost there are 7 class. We're going to discuss one by one. ठीक है, तो पहले बेसिक आइडिया थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद एग्जांपल लेके डिटेल में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम डिवाइड क्यों करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन of orthopoda. How we classify the orthopoda? We classifying the orthopoda on the basis of body division, then presence and absence of certain appendages, and phylum Arthropoda on the basis of these categories or this criteria, that is body division, presence and absence of certain appendages. We can divide them in certain groups or certain classes, that is 7 classes. Namely, number one is crustaceans. Crustaceans or crustacea. Crustacea. Now, the crustacea, the body is divisible into cephalothorax, that is head plus thorax is called cephalothorax, and abdomen. अब क्रस्टेशिया में जो बॉडी है, अगर हम वो देखेंगे आर्थ्रोपोडा का जो क्रस्टेशिया क्लास है, इसमें जो एनिमल्स है, इनका बॉडी जो है, इनको हम डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट में। एक होता है सिफेलोथोरैक्स, सिफेलोथोरैक्स, नेक्स्ट पार्ट होता है एब्डोमेन। अब देखो, मैंने आपको जब शुरू में पढ़ाया था, इन द बिगिनिंग ऑफ द एनिमल किंगडम, आई हैव डिस्कस्ड मेनी पॉइंट्स एंड मेनी लाइक क्राइटेरियाज, ठीक है, टू क्लासिफाई द एनिमल्स। सो देयर आई डिस्कस्ड विथ यू अबाउट द सिफेलोथोरैक्स, सिफेलिक, सिफेलो, इसका मतलब मैंने बताया था, ठीक है। सिफलाइजेशन मैंने पढ़ाया था, सिफेलो मतलब हेड पार्ट, ठीक है, थोरैक्स मतलब थोरैक्स पार्ट, तो हेड एंड थोरैक्स पार्ट को मिला के हम कहते हैं सिफेलोथोरैक्स, ठीक है। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया कि देर आर मेनी मेनी थिंग्स विल कम एंड मेनी मेनी टाइम्स विल रिपीट द सेम वर्ड, सेम concept again and again. So it is expected from you that you have all the knowledge till date. जितना मैंने पढ़ाया आपको उतना सब आता है, तभी आपको आगे वाला चीज़ समझ में आएगा। जो पीछे वाला जो भी टॉपिक आपने अगर ठीक से नहीं सीखा है, तो आगे बढ़ने में, स्पेशली इन दिस चैप्टर, इज नॉट दैट इजी, स्पेशली दिस चैप्टर, द नेक्स्ट 2-3 चैप्टर्स इज लाइक दैट, ठीक है, एक के ऊपर सब एक है। चलो, तो बॉडी 2 पार्ट में डिविजिबल है, एक होता है सिफेलोथोरैक्स, दूसरा होता है आपका एब्डोमेन। नाउ द डोर्सली द सिफेलोथोरैक्स इज कवर्ड बाय अ थिक एक्सोस्केलेटन, जिसको आप कहते हैं कैरापिस, एंड देयर इज लाइक
there are present of two pairs of antennae. इनके पास दो एंटीने भी होते हैं. कितने होते हैं? दो पेयर्स. And they have a pair of stalk compound eye. इनके पास और क्या होता है? कंपाउंड आई होता है. ठीक है, एंटीना होता है दो पेयर, कंपाउंड आई होता है, और दे हैव covered the cephalothorax with the help of exoskeleton that is called carapace. ठीक है, अभी अब जब मैं पढ़ाऊंगा विद इमेज तो आपको और एग्जांपल तब दिखाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा. एग्जांपल है पैलियोमॉन, देन एस्ट्रकस. पैलियोमॉन मतलब प्रॉन्स, एस्ट्रकस मतलब क्रेफिश. खाया है? प्रॉन्स खाता है कि नहीं? साक्षी वेजिटेरियन हो क्या? प्योर वेजिटेरियन, इसीलिए नहीं खाती है. गुड. ओ, साक्षी इस्कॉन वाली है. इसीलिए. गुड. क्षितिजा भी नहीं खाती है. गुड. अमित भी नहीं खाता है. अच्छा. गुड. हर्षदा भी नहीं खाती है. अरे बाप रे, इतना सारा वेजिटेरियन आ गया हमारे इस बैच में. वाओ. मैं तो नहीं हूँ वेजिटेरियन. ओके. मतलब अच्छा ही है. मतलब किसी को भी अगर पार्टी में बुलाना है या किसी को भी इनवाइट करना है, बस प्रॉन बना लो और बोलो कि आज तो प्रॉन है, तो ये लोग भाग जाएंगे, आएंगे ही नहीं. पैसे बच जाएंगे. चलो, तो तुम लोग एक दूसरे को जान जान जाओगे, अच्छा ही रहेगा फिर. गुड. चलो, fine. So crayfish and the prawn or the paleomon, they are economically very very important because they are very tasty actually. So that's why people, they're very tasty and they're very nutritive. So all over the world there is a high demand for the prawns and the crayfish. Crayfish इंडिया में उतना फेमस नहीं है, बट अगर आप साउथ ईस्ट एशिया, मतलब जैसे दूसरे कंट्रीज है, जैसे जापान है, आपका ये इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, मलेशिया है, ये सारे, चाइना है, यहाँ पे बर्मा है, यहाँ पे बहुत डिमांड है एक्चुअली. और बाहर में भी एक्सपोर्ट होता है, यहाँ से लोग खरीदते हैं और बाहर भेजते हैं. रजिया पूछ रही है कैसी होती है टेस्ट. अभी एक चैप्टर आएगा आगे, उसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम, तो मैं आपको वहाँ पे पढ़ाऊंगा. अलग अलग तरह का टेस्ट बर्ड्स होता है हमारे हमारे टंग में, है ना. तो आपको पता होगा सो टेस्ट, स्वीट टेस्ट, सॉल्टी, है ना. ठीक है, ये अलग अलग टेस्ट होते हैं. तो उसमें एक टेस्ट होता है, उसको हम बोलते हैं उमामी. उमामी जो टेस्ट होता है ना, वो सिर्फ जो नॉन वेजिटेरियन है उन्हीं को पता चलेगा. वो फ्लेश का जो टेस्ट होता है वो उमामी होता है. दैट्स अ डिफरेंट टेस्ट. ठीक है. ठीक है, चलो वो बताऊंगा मैं आपको. नहीं नहीं, बाकी लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं ना. 83 में से फिर बस 10 लोगों ने बोला वेजिटेरियन है, बाकी लोगों ने कुछ बोला क्या? सब चुपचाप बैठे हैं, वो सब नॉन वेजिटेरियन है. चुपचाप, टेंशन मत लो. या आई नो इन महाराष्ट्र आई हैव द एक्सपीरियंस. द चिलाप जिसको आप बोलते हैं ना, टिलापिया, एक्चुअली दैट इज अ वेरी कॉमन कार्प. एंड स्पेशली इन योर एरिया, those who are living near to that Ujni Dam, so you can find some other varieties of fish, 2 or 3 varieties, especially the chilap is maximum, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मिलेगा आपको यहाँ पे. और आपको फिश क्या मिलता है? मैक्सिमम विल गेट द सी फिशेस, मराइन फिशेस. एंड देन दैट इम्पोर्टेड रोहू काटला जो आता है बाहर से, वो मिलेगा आपको. ठीक है, चलो, फाइन. If you want to test fish, then you should visit the place where there is lot of water bodies like West Bengal, uh, Jharkhand, not Jharkhand, West Bengal, Assam, eastern part of India. यहाँ पे आपको मिलेगा मैक्सिमम. चलो, you won't believe, like there is a fish which is called Indian salmon, which is very costly and which is only available during the time of rainy season. ठीक है, like this is the time when it is available. That is called hilsa. तुम लोगों ने नाम सुना है कि पता नहीं. 1 kg of hilsa will cost you more than 2,500 rupees. 2,500 rupees. 1 kg of hilsa. And it can go up.
दिस इज द मिनिमम प्राइस आई सेड, ठीक है। यस, इट इज वेरी फेमस इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश दिस टीचर। चलो, like someone is serving hilsa for you, that means you are very important. Like in Europe there is a tradition, like someone is serving salmon to you, that means you are a very important guy or person. चलो ठीक है, अपना पढ़ लेते हैं, प्रॉन्स तक हो गया, नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे क्लास नंबर 2। सो क्लास नंबर 2 that is called chilopoda, chilopoda, ठीक है। अब देखो चिलोपोडा जो है वो, उसमें क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। इनके केस में क्या होगा, द बॉडी इज डिविजिबल इनटू, बॉडी इज डिविजिबल इनटू, अरे ये तो फिश का फोटो भी भेज दिया अरे भाई होल्ड ऑन, फोकस ऑन द टॉपिक। हाँ, पॉइजन क्लॉज, गुड, चलो आ गया। नाउ द बॉडी इज डिविजिबल इनटू टू पार्ट, वन इज योर हेड एंड अनदर वन इज योर ट्रंक। अब यहाँ पे क्या होता है कि अलग से थोरैक्स नहीं होता है, क्योंकि बॉडी जो है ना बहुत लॉन्ग होता है, ट्यूब लाइक होता है, इसलिए हेड पार्ट होता है, उसके बाद हम किस में डिवाइड करते हैं, नेक्स्ट हेड एंड नेक्स्ट इज ट्रंक, ठीक है। चलो नाउ नहीं, एब्डोमेन अलग से नहीं होता है, ये पूरा ही जो बॉडी है इसको हमने मतलब हम क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है आपका हेड पार्ट और दूसरा होता है आपका ट्रंक पार्ट, लॉन्ग इलोंगेटेड पार्ट होता है। आपको पता होगा इसका एग्जांपल है स्कोलोपेंड्रा, जिसको हम बोलते हैं सेंटीपेड। इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट पेयर ऑफ जो मैं आपको अभी फोटोज इसका दिखाऊंगा, लेट मी जस्ट फिनिश द क्लासिफिकेशन एंड आई विल शो यू द इमेजेस एज वेल, ठीक है। नाउ द एग्जांपल इज स्कोलोपेंड्रा, स्कोलोपेंड्रा। तो इसका जो फर्स्ट पेयर ऑफ अपेंडेजेस होता है ना, इट मॉडिफाइड इनटू पॉइजन क्लॉज। गांव देहात में जहाँ पे थोड़ा मॉइस्चर ज़्यादा है, आपके महाराष्ट्र में भी ये बहुत दिखेगा आपको, जहाँ पे थोड़ा मॉइस्चर होता है वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा रहता है। और इसके जो पॉइजन क्लॉज है, अगर ये यूज़ करेगा किसी को पोक करता है विद द पॉइजन क्लॉज, सो इट इज़ वेरी पेनफुल। वहाँ पे सूजन, वहाँ पे क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, बहुत दर्द होता है काफ़ी देर तक लोगों को, ठीक है। सो दिस इज नॉट सेफ एनिमल, दिस इज वेरी डेंजरस, ठीक है। बहुत दर्द होता है जहाँ पे, ये ऐसा नहीं डेडली नहीं है, बट जहाँ पे भी आपको ये पॉइजन क्लॉज पोक करेगा, अगर पॉइजन चला गया तो आपको बहुत देर तक पेन सेंसेशन होगा, स्वेलिंग हो जाएगा, तकलीफ होगा, आपको बुखार भी आ सकता है, ठीक है। चलो स्कोलोपेंड्रा, आई विल शो यू द इमेजेस आल्सो, जस्ट लेट मी फिनिश द क्लासिफिकेशन, बेसिक क्लासिफिकेशन। क्लास नंबर 3 दैट इज डिप्लोपोडा, डिप्लोपोडा ये आप लोग बहुत देखे होंगे। डिप्लोपोडा मतलब जिसको हम बोलते हैं मिलीपेडा और मिलीपेड। कुछ ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा, इसमें कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है, इट विल टेक सम टाइम। जैसे आपको अगर आप मच्छर काटा तो आप क्या ट्रीटमेंट करते हो क्या, या अगर आपको चींटी काट दिया तो ट्रीटमेंट करते हो क्या, तो वैसे ही है ये, बस इसका इफेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, थोड़ा लॉन्ग टर्म तक चलता है। मतलब एक बार स्कोलोपेंड्रा ने आपको बाइट कर दिया तो मान लो आपको इफेक्ट तो रहेगा 24 आवर्स, तो आपको रहेगा इफेक्ट, बुखार भी आ सकता है, उसके बाद धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, बॉडी विल नॉर्मलाइज द थिंग, हमारा इम्यून सिस्टम उसको ठीक करेगा। चलो डिप्लोपोडा मींस इसका बॉडी कैसा होगा, द बॉडी इज डिविजिबल इन केस ऑफ द डिप्लोपोडा, इट इज डिवाइडेड इनटू थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। यहाँ पे बॉडी क्या है, दो पार्ट में डिवाइड होता है, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, यहाँ पे हेड पार्ट भी नहीं है अलग से। अब ये थोरैक्स एंड एब्डोमेन जो होता है, एग्जांपल, हाँ दिस इज द इमेज, आई विल आल्सो शो यू द इमेज, सो डोंट वरी, दिस इज द स्कोलोपेंड्रा, आपने सबने देखा होगा, ये गांव देहात में बहुत मिलता है, देखा है ना स्कोलोपेंड्रा, यस। और ये बहुत डेंजरस है, इसका फर्स्ट जो पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस है ना, वो क्लॉज हो जाता है, पॉइजन क्लॉज हो जाता है, इससे जिसको भी वो पोक करेगा उन्हें बहुत दर्द होगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, सूजन हो जाता है, वहाँ पे टिश्यू में इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है। चलो हाँ, बहुत पेनफुल होता है, बहुत इनसेन अमाउंट ऑफ पेन होता है, मतलब बच्चों को काटेगा ना तो बच्चों को बुखार आ जाता है, इतना दर्द होता है उनको। बड़े को होने से तो तब किसी भी हालत से वो थोड़ा सा दे कैन टॉलरेट फॉर सम लेवल, बट अगर छोटे बच्चे होंगे तो दे विल क्राई फॉर वेरी लॉन्ग टाइम,
या सो दिस इज वेरी डेंजरस, बुखार आ जाता है बच्चों। चलो, नाउ नेक्स्ट इज डिप्लोपोडा, व्हाट वी आर डिस्कसिंग। तो उसमें क्या होता है, बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू थोरैक्स एंड एब्डोमेन, देयर इज नो हेड आल्सो। यहाँ पे अलग अलग तरह से बॉडी डिवाइड होता है। अभी हमने शुरू में मैंने क्या बताया था कि हमने क्लासिफिकेशन किसके बेसिस में किया है, बॉडी का डिवीजन, है ना। अच्छा, किसी को काटा था बुझले, अच्छा साक्षी को काटा था, ओके ओके। कब साक्षी, कब हुआ ये हादसा, जब छोटे थे और थोड़ा सा? अच्छा, 3 या 4th स्टैंडर्ड में जब थे इसमें, 3rd या 4th में। प्रवास हंस रहा है, इसको इसको पकड़ के जब आएगा ना, इसको इसके इसको दे देना, इसको इसको कटवाना है, इसको पता चलेगा दर्द कैसा होता है। ये बहुत हंस रहा है, बोला उल्टा काट लेना है। याद रखना, प्रवास ने बोला था ना, एनी वन कैन ब्रिंग इट एंड गिव इट टू मी, आई गिव इट टू प्रवास, ठीक है ना। सब हाथ पैर पकड़ना, उसको उसको ये पॉइजन क्लास, उसको 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 कटवाएंगे उसको, रुको, उसको मजाक लग रहा है। चलो ठीक है। अब देखो, डिप्लोपोडा जो है, इसका एग्जाम्पल है जूलस, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जूलस। चलो मैं इमेजेस दिखाता हूँ आपको, नहीं तो काफ़ी 2-3 एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया है, तो इमेज देखना जरूरी है। आई शो यू द इमेज नाउ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। एनिमल किंगडम, आर्थ्रोपोडा, या रेनी सीजन में सबसे ज्यादा दिखता है, बिल्कुल सही बोला है, रेनी सीजन में ज्यादा दिखता है, सही है। देखो, ये है आपका पहला जो हमने बताया था आपको, सेंटीपीड, दिस इज द सेंटीपीड। जो फोटो उसने दिखा है, ये भी एक वैरायटी है, ऐसा भी होता है, ठीक है। कहाँ गया दूसरा, ये तो प्रॉन्स है, जूलस कहाँ गया, यस आई गॉट इट, या दिस इज जूलस। ये अभी जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, मिलीपेड्स, डिप्लोपोडा, इनको देख के ऐसा लगता है कि इसके बहुत सारे पोडा है, मतलब जो बहुत सारे इसके अपेंडेजेस है, लेग्स है, ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मिलीपेडा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कैटेगरी है आपका इंसेक्टा, जिसको हम बोलते हैं हेक्सापोडा, इसको हम क्या कहते हैं, हेक्सापोडा। जैसे ये देखो, एक ये है कि दिस इज स्कॉर्पियन, ठीक है। चलो चलो, नेक्स्ट क्लास जो है, दैट इज इंसेक्टा, क्लास इंसेक्टा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास क्या है, क्लास इंसेक्टा। अब इंसेक्टा में इसको हम दूसरा इंसेक्टा को हम दूसरे तरीके से कैसे क्या कर सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं हेक्सापोडा। हेक्सापोडा मतलब 6। So the arthropoda which are having 6 pairs of appendages, they are called hexapoda. So hexapoda हम किसको कहते हैं, the animals which are having 6 pair of appendages, they are called hexapoda, ठीक है। तो hexapoda हम किसको कहते हैं, जिसके पास 6 appendages होते हैं, उसको हम कहते हैं hexapoda, ठीक है। तो ये ध्यान देना, इंसेक्ट हम किसको कह सकते हैं, आर्थ्रोपोडा विच आर हैविंग 6 पेयर्स ऑफ appendages. I'm repeating it again and again. Huh? Now, body can be divisible, or body can be divided into head, thorax, and abdomen. And there is a, like, they have a pair of antenna. इनके पास और क्या होता है, they have pair of antenna. They have pair of antenna, ठीक है, and a pair of compound eye. और क्या होता है उनके पास, a pair of compound eye, ठीक है। And the main excretory product, or the main excretory substance what they release, that is uric acid, that is uric acid. The main excretory product or main excretory substance what they release, or the main nitrogenous waste is, in case of insecta, is uric acid. एग्जाम्पल हम किसको बोलेंगे, जैसे एग्जाम्पल है सिल्वर फिश,
इसका नाम है सिल्वर फिश, एक्चुअली ये फिश नहीं है, ठीक है। देखो कंपाउंड आई और सिंपल आई में मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। सिंपल माई आई मतलब एक सिंगल, ये जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ये उनमें क्या होता है, एक सिंगल यूनिट होता है, ठीक है। ये कंडीशन हो सकता है, या तो मान लो इस तरह से स्टॉक होंगे, ऐसे बहुत सारे यूनिट मिलके आई बनाएगा, सब कनेक्टेड रहेगा और कुछ नहीं। अगर सिर्फ एक है तो उसको हम बोलेंगे सिंपल आई, अगर इस तरह बहुत सारे मिलके बनते हैं उसको हम बोलेंगे कंपाउंड आई, बस इतना ही डिफरेंस है। अब उसको, अब ये जो सिंपल आई, कंपाउंड आई, इसका जो डिटेल स्ट्रक्चर हमें नहीं पढ़ना उतना डिटेल में, ठीक है, नहीं है हमारे सिलेबस में। ह्यूमन आई हमारे सिलेबस में, हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, एग्जाम्पल है आपका सिल्वर फिश, कॉकरोच, देन बेड बग एटसेट्रा। सिल्वर फिश जो होता है ना, अभी इसका डायग्राम में मैंने दिखाया था, लेट मी शो इट अगेन, अभी आपको दिखाते हैं। ये सारे आपके इंसेक्ट हैं। तो दिस इज वेरी सिल्वर फिश, या दिस इज सिल्वर फिश। तो देखना, ये इसका नाम सिल्वर फिश क्यों पड़ा है, इसका बॉडी का जो कलर है वो सिल्वरिश टाइप का होता है, पहला। दूसरा, इसका बॉडी का शेप जो होता है वो सिल्वर फिश के जैसा होता है। हमें कहाँ पे मिलेगा, देखना आप जब बहुत पुरानी किताबों को खोलोगे ना, तो आपको ये वाले कीड़े, ये जो इंसेक्ट है, आपको देखना ये निकल के जाएंगे। बहुत दिन तक अगर आपने किताबों को एक जगह पे रख दिया है ना, अब जब उसको निकालोगे तो आपको ये वाले इंसेक्ट काफ़ी दिखता है। अब मुझे नहीं पता आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, पुराने लाइब्रेरी के पार्ट में, अगर लाइब्रेरी में अगर जाओगे, वहाँ पे किताब निकालोगे, मतलब जहाँ पे बहुत दिनों तक लोगों ने यूज़ नहीं किया है, अनयूज पे अगर आप जाओगे ना, उसको उस मतलब वहाँ से किताबें निकालोगे तो आपको ये वाला इंसेक्ट बहुत दिखेगा, इसको बोलते हैं सिल्वर फिश, ठीक है। और नहीं, ये तो जंप नहीं करते उतना, वो अलग है। तुम जो जंपिंग वाला बोल रहे हो ना, वो अलग है, ये वाला वो नहीं है, ठीक है, दैट इज डिफरेंट, ठीक है। ये जंप नहीं करते, ये भागते हैं, देखना, भाग जाएंगे, गिर जाएंगे ऐसे। और ये बिल्कुल भी पॉइजनस नहीं होते, सो डोंट वरी, डेंजरस नहीं होते बिल्कुल। नेक्स्ट है क्लास नंबर 5, दैट इज कॉल्ड अरेक्निडा। क्लास 5, दैट इज अरेक्निडा। अरेक्निडा। Now, in case of this class, the animal belong to this class, or the arthropoda belong to this class. Their body is divisible into cephalothorax and abdomen. Body कितने पार्ट में डिवाइड होगा, cephalothorax। बेड बग देखना है, बेड बग, अच्छा दिखाता हूँ। Just give me a minute, I'll show you. हाँ खटमल, यस खटमल, वही है बेड बग। ये देखो, ये आपके बिस्तरों में ऐसे दिखेंगे, इस तरह छोटे छोटे, ठीक है। ये आपके बॉडी में आएंगे तो बहुत छोटे होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं। ये माइक्रोस्कोप से अगर मैग्नीफाई करेंगे तो हमें दिखेगा ऐसे। दिस आर बेड बग्स, बहुत डेंजरस है, खून चूसते हैं, ठीक है। सो बी केयरफुल। रात को अगर आपको बहुत प्रॉब्लम होता है ना आपके बेड में सोने के लिए, तो आपका बेड ज़्यादा क्लीन नहीं रहोगे तो ऐसा रहेगा। यू टू क्लीन एवरीथिंग प्रॉपरली। या दिस इज बेड बग, रजिया ने भेजा है। ये सैंगनिवोरस। चलो, नाउ दिस आर द एग्जांपल, फाइन। नाउ अरेक्निडा में क्या पढ़ रहे थे कि दे हैव द बॉडी which can be divisible into cephalothorax and abdomen, and the cephalothorax it bears simple eyes and 6 pairs of appendages। ध्यान देना, हमेशा 6 पेयर्स ही होंगे, क्योंकि इंसेक्टा में ये इंपॉर्टेंट है, और ये एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इंसेक्टा। मतलब कितने पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस होंगे, 6 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस। तो इसमें भी कितना है, 6 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस है। दे हैव सिंपल आईज, ठीक है। एंड एंटीना, इन केस ऑफ द अरेक्निडा इट इज एब्सेंट, सो एंटीना is absent,
एंटीना नहीं होता है, एंटीना इज एब्सेंट। ठीक है, एंटीना नहीं होता है। और रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है इनके पास? बुक लंग्स, बुक लंग्स। दे हैव रेस्पिरेटरी ऑर्गन, व्हाट दे हैव बुक लंग्स। एग्जांपल क्या है? स्पाइडर, स्कॉर्पियन, ये सारे एग्जांपल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास। आज यह बेसिक क्लासिफिकेशन खत्म कर लेंगे, कल डिटेल में एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे। कल मतलब नेक्स्ट क्लास, क्लास ऑनसियोफोरा, ऑनसोफोरा। ठीक है, ऑनसियोफोरा। एग्जांपल इसका है पेरिपेटस, पेरिपेटस। क्लास 7 है मेरोस्टोमटा, क्लास नंबर 7। एग्जांपल है लिमुलस, लेमुलस का कॉमन नाम है हॉर्स शू क्रैब। ठीक है, और नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल हमने देखा वो है आपका पेरिपेटस। ठीक है, तो पेरिपेटस क्या है? दिस आर कॉल्ड वॉकिंग वॉर्म। इस पेरिपेटस को हम क्या कहते हैं? वॉकिंग वॉर्म्स। तो ये दोनों ही हमें डिटेल में जो है एग्जाम्पल जो है डिटेल में उनके बारे में पढ़ के ही समझ में आएगा, तो मैं तभी आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो ये बेसिक था, दिस इज द बेसिक्स अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोडा। या इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर इट कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल। तो मैं एग्जाम्पल पढ़ा के ही मैं बताऊंगा, तो ही आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज दे हैव मिनिमम नंबर ऑफ एनिमल बिलोंग्स टू दिस क्लासेस, सो वी नीड टू डिस्कस अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल विद द फोटोग्राफ्स। उस समय मैं इनका कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अभी बस आपको यहाँ इतना ही बताया मैं बेसिक क्लासिफिकेशन। मतलब 7 क्लासेस हैं आर्थ्रोपोडा में, देयर आर 7 क्लासेस इन आर्थ्रोपोडा एंड वी हैव डिस्कस ऑल वन बाय वन। सो इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। अरे कुछ लोग तो बाय बोल के निकल भी गए, अरे बाप रे। क्राइम पेट्रोल देखना है क्या? अच्छा चलो ठीक है। सो यू हैव नेक्स्ट क्लास, व्हेन यू हैव नेक्स्ट क्लास? नेक्स्ट क्लास कब है? 11:10 को। चलो ठीक है, ओके। If you do not have any doubt, those who do not have any doubt they can leave, and if someone is having any doubt you can ask. Yeah, aquatic, on see थोड़ा